Okay students, in the last lecture we have talked about the heating effect of electric current and we have derived the equation for Joule's law of heating, that is H equals to I square RT. That relation we have already done in the previous video. Those students who have not watched, please go through the previous video and then start this video. Okay, so what we have learned in the last session was that whenever a current is flowing in the circuit, it produces heat. Some of the electrical energy is converted into heat, and this is cannot be, you can say this cannot be neglected. Okay, this is it is one of the side effect of current, that whenever current flow, heat will always be produced. Now this heat sometime is desirable for us. It means we use this heat as in to do some certain work or to fulfill our aim, and sometime it is undesirable, that is it is unwanted, and it is for us as a waste. For example, if we talk the example that I have taken previously also, electric fan is running and it is running continuously, then it will become somewhat heat and this heat is not required. Similarly, when you run a laptop continuously, the circuit which is in the motherboard becomes hot due to the continuous flow of current. That's why exhaust fan is there in the laptop, which radiate, or you can say which accept the heat को वो क्या करती है, बाहर निकाल देती है, that's emit out the heat from the laptop. So here also the heat is unwanted, it is a type of waste, but heat will always be produced whenever a current is flowing in a circuit. This will be fixed, ये कभी चेंज नहीं होगा. हीट जो है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट जब भी जहाँ फ्लो होगा हीट प्रोड्यूस होगी. यूजफुल की बात करें, यही अपन को इम्पॉर्टेंट है. आप कोई भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज़ करते हो फॉर आयरनिंग योर क्लोथ्स, वहाँ पे आपको हीट चाहिए होती है. इलेक्ट्रिक टोस्टर जो अपन ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं टू मेक टोस्ट, ब्रेड टोस्ट, वहाँ पे अपन हीट का यूज़ करते हैं. मैनी एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रिक हीटर जो अपन विंटर सीजन्स में यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी अपन यूज़फुल है, एंड सो ऑन. मेनली देयर आर टू विच वी हैव टू learn in detail, that is bulb filament यानी लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब. ये कैसे इस एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है. एंड दी फ्यूज़ घरों में जो अपन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, वो कैसे यूज़ आता है इन दी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उसको भी अपन सिमुलेशंस के थ्रू देखेंगे. सो द कंक्लूजन इज दैट whenever a electric current flows in a circuit, heat will always be produced. Now first of all, bulb filament की अगर अपन बात करें तो बल्ब फिलामेंट आपने सभी ने देखा होगा, आपके घरों में भी है ये बल्ब इस टाइप का. ठीक है, बल्ब फिलामेंट की अगर अपन बात करें, then you have observed this, there is a very thin wire in the bulb which is known as the filament. Look here in this diagram, this is your bulb. A very spiral wire is there, that is your filament, and it is mainly made up of tungsten. Look what happens in a bulb, how does it glow? When the electric current passes through the filament, or you can say the wire, tungsten wire, metallic wire, then most of the electrical energy is converted into heat energy. यानी जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं अपन, वो मोस्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर. व्हेन दिस मेटल, टंगस्टन मेटल गेट्स हीटेड अप, और ये बहुत जल्दी हीटेड अप हो जाता है, देन इट ग्लोज. इट मीन्स
ये ग्लो करने लग जाता है और वही ग्लोनेस इज दी नथिंग बट योर लाइट एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट इट comes out. So what happens when the electrical energy is supplied to the bulb, then most of the electrical energy is converted into heat energy, and thus the filament, in bracket you can write tungsten, which is having हाई मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे ये ज़रूरी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट. अगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी जो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल से, वो वहीं पे मेल्ट हो जाएगा. क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा, अगर टंगस्टन की जगह आप नॉर्मल कोई वायर यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से हीट अप होके टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा. दैट इज़ वाई टंगस्टन वी आर यूजिंग, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर बल्ब फिलामेंट, and which is having high melting point and it glows and thus emit light. So in this manner your bulb filament works and it is based on the heating effect, because जब तक अगर वो हीट नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा तो आपको लाइट नहीं मिलेगी. So this is the use of bulb filament. Also one more point you have to add it here, also the filament is kept in a insulator support, बिकॉज आपने केमिस्ट्री में रीड किया होगा, बिकॉज टंगस्टन एक मेटल है और अगर बल्ब के अंदर कुछ ऐसी गैसेस है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, so if oxygen gets react with the metal, then you know that it gives out a chemical reaction and the product is metal oxide. so यहाँ पे oxidation process हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि उसकी फिर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, वो ग्लो नहीं करेगा. दैट इज वाई द फिलामेंट इज केप्ट इन एन इंसुलेटर सपोर्ट बाय कीपिंग इट in inactive gases like mixture of nitrogen and argon gases. इन गैसेस को अपन फिलामेंट के अंदर रखते हैं so as to prolong दी लाइफ ऑफ फिलामेंट, ताकि वो ऑक्साइड ना हो और उसकी जो लाइफ है आपके बल्ब की वो इंक्रीज हो जाए. सो दिस इज द रीजन यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैसेस इस फिलामेंट के अंदर, अपन बल्ब के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती, इनएक्टिव गैसेस है, सो दैट द लाइफ ऑफ द फिलामेंट गेट इंक्रीजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द बल्ब फिलामेंट which is given in your book also. The next we have to look is your fuse, electric fuse जो अपन यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या फिनोमिना है, what is the working of this fuse, that you have to remember. For this we have a simulation. सिमुलेशन से समझते easy हो जाएगा आपके लिए. ओके, पहले सर्किट को समझते हैं. यहाँ पे एक मैंने लाइट बल्ब ले रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम एंड इज कनेक्टेड थ्रू अ वायर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट. बैटरी मैंने ली है 10 वोल्ट की
this is a transparent tube जो आपको दिख रही है having a zigzag line. It is the fuse. ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज मैंने कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ में सर्किट के अंदर. दिस इज अ स्विच ऑन एंड ऑफ एंड दीज आर दी कनेक्टिंग. दिस इज द एमीटर जहाँ पे भी मैं इस पॉइंटर का रखूँगा दैट विल गिव मी द करंट. ओके, नाउ लुक एट द रीडिंग्स वन अगेन. दिस इज अ 10 ohm resistance. This is a 10 volt battery. So if I talk what will be the current when I close the circuit using Ohm's law, V equals to IR. So I will be V by R. V is 10 volt, R is also 10 ohm. So 10 by 10 is 1 ampere. So look here, when I close the circuit, it is 1 ampere showing, and I have used the electric fuse of rating 2 ampere. What does this mean, 2 ampere? Look at the bottom part, it is 2 ampere showing. 2 ampere suggests that if in this circuit current will increase by the 2 ampere, then this fuse will get used up, or you can say the fuse will break the circuit. यहाँ पे ये fuse आपका क्या हो जाएगा, bulb will get fused up. यहाँ पे बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. दिस वायर जो ये आप zigzag लाइन देख रहे हैं फ्यूज के अंदर, ये मेल्ट हो जाएगी एंड द सर्किट विल गेट ओपन. कब, जब करंट 2 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा सर्किट के अंदर. तो देखते हैं इसी को. हाउ विल आई इंक्रीज द करंट? बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. तो अब मैं बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूँ. लुक एट द रीडिंग्स इन द एमीटर, और जैसे ही एमीटर के अंदर 2 एम्पियर से ज़्यादा होगा वहाँ पे इस फ्यूज को ऑब्जर्व करना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. आई एम इंक्रीजिंग the current. Look at the brightness of the bulb is also increasing at the same time. It is 1.74 now. Also now just observe this. बुश, क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका जो सर्किट था, फ्यूज था, वो ब्रेक हो गया. देखो ये जिगजैग लाइन जो आपको दिख रही है इसके अंदर, ये एक दूसरे से ब्रेक हो गई. यानी ये जो वायर था ये मेल्ट हो गया है. क्यों मेल्ट हुआ? बिकॉज करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई. And now we can apply the Ohm's law also, sorry, Joule's law, that is H equals to I square RT. Resistance was same, time was increasing, no problem, time we are continuous. I square, current is increasing and the height, and the heating is proportional to I square. So heat will also increase, and when the current increases more than 2 ampere, इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई कि फ्यूज का जो वायर था that gets melt. So that is the important reason, that is the working of fuse. So you have to write it down. Fuse के अंदर what is happening? Fuse is used to protect other electrical appliances to get damage, to protect other appliances to get damage. क्यों? अगर फ्यूज आपका मेल्ट हो गया तो सर्किट ओपन हो गया, तो वो करंट आपके अप्लायंसेस के अंदर नहीं गया, अप्लायंस के अंदर वो करंट नहीं गया, तो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और आपका सर्किट बच जाएगा. आपका जो भी अप्लायंस है वो खराब नहीं होगा. और अगर फ्यूज नहीं यूज करते तो क्या होता? सिंपल सा है, वो करंट उस अप्लायंस के थ्रू से फ्लो होता और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती कि आपका जो शॉर्ट सर्किट हो जाता सर्किट के अंदर, अप्लायंस खराब हो जाता, फिर आप उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाते. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर यूजिंग फ्यूज, and it is used to protect other electrical appliances to get damage. So what happens when the current in the circuit increases by a certain amount, certain high amount you can say, then this current
melts the wire in the fuse and thus breaks the circuit, and the high current does not passes through the appliances, or you can say your gadget जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, and thus it gets protected. So this is the purpose of electric fuse. और यहाँ पे डिफरेंट रेटिंग्स का अपन यूज़ करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे 2 एम्पियर का रेटिंग का यूज़ किया था. ओके, सो अगर मैं इसकी अप्लायंस रेटिंग इंक्रीज़ कर देता हूँ, नाउ लुक, अब 2 पे ये जल रहा है बिकॉज इसकी रेटिंग मैंने इंक्रीज़ कर दी. अब ये जब 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तब ये जाके ब्रेक होगा. तो इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, देखो वैल्यू को. अब ये जैसे 4 से इंक्रीज़ होगा ये फ्यूज़ हो गया. इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये फ्यूज़ हो गया बिकॉज करंट अभी कितना है इसके अंदर, 4 एम्पियर से ज़्यादा था. दैट इज़ द रीज़न वाई इट गेट फ्यूज्ड. अब मैं इसको 4 एम्पियर से कम करता हूँ, देखो ये मेरा वापस स्टार्ट हो जाएगा. देखो 3.89 है अभी, और वापस से इंक्रीज़ करता हूँ इसको, ये 3.94, 3.99. नाउ देखो अब ये फ्यूज़ हो जाएगा. सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इन अ circuit. Now electric power. Power, we know that what is power. Power is the energy dissipated per unit time, and energy what we have learned in the last class, that is energy is I square RT upon T, that is T से T cancel. So power is how much? I square R, or also power I square R can be written as VIT upon T. So T से T cancel. So power is also equals to V into I. That we have already done in the last class. Those who have not gone through it, please go through it. Anyway, so power is V into I, or you can say I square R. Also one you can use in the terms of resistance and voltage, that is V square by R. These all are the formula for the electric power. It depends upon the question, आपको क्या गिवन है. इसमें कुछ नहीं किया है, I equals to V by R से रिप्लेस कर दिया मैंने इस इक्वेशन में. तो you will get this V square by R by using Ohm's law है. Ohm's law का आप इक्वेशन यूज़ करिए, V equals to IR, और ये एक फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूले बना सकते हैं. And the SI unit of power, you all know that SI unit of power is watt, denoted by capital W, and 1 watt you can say equals to 1 volt into 1 ampere. So 1 watt is your 1 volt ampere. So how will you define 1 watt? जैसे 1 एम्पियर क्या था, 1 वोल्ट क्या था, 1 ओम भी क्या है अपन ने, वैसे ही 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द पावर कंज्यूम consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Potential difference of 1 volt. So this is defined as the 1 watt. बट एक्चुअली जो अपन यूज़ करते हैं यूनिट वॉट की, देखो वॉट बहुत स्मॉलर यूनिट है, इट इज़ वेरी स्मॉल व्हेन वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अपन यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो यूनिट है वॉट, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है. सो वी यूज़ द किलो वॉट. एंड व्हाट इज़ किलो वॉट?
kilowatt is 10 raised to power 3 watt, or you can say 1000 watt is equals to 1 kilowatt. एंड अपने जो घरों में जो आपने सभी ने देखा होगा इन आर जनरली हाउस होल्ड्स, 1 यूनिट की टर्म्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. सो दैट कमर्शियल यूनिट इज व्हाट? कमर्शियल यूनिट इज द एनर्जी used by, yeah, you can say energy used in kilowatt hour. That is, we know that power is what? Power is equals to, or you can say power into time is what? Energy. So यही एनर्जी क्या है आपके पावर इनटू टाइम, और इसी एनर्जी को अपन ने बोला है यूनिट. और ये यूनिट किसके इक्वल है? व्हेन वी आर मेजरिंग पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर. सो 1 किलोवाट आवर is equals to 1 unit. It means that you have consumed, if 1 unit is consumed, it means that you have used 1 kilowatt power for 1 hour. You have used an appliances which is having 1 kilowatt power and you have run that device for 1 hour. I repeat, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए. 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस आप यूज कर रहे हो फॉर 1 आवर, वो जो एनर्जी कंजप्शन है दैट इज 1 यूनिट. सो 1 किलोवाट आवर में इफ आई से हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, दैट एनर्जी इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 किलोवाट आवर और 1 unit. So we know that 1 kilowatt is 1000 watt into 1 hour. 1 hour is having 3600 second. 1 hour is having 3600 second, that is 60 into 60. So if I get multiplied, it is 3.6 into 10 raised to power 6 watt second. And watt second is what? 1 watt is what? 1 joule per second. So 1 watt into second is what? 1 joule. So it is 3.6 into 10 raised to power 6 joule. 1 unit is having how much? 3.6 into 10 raised to power 6 joule. So this is all about electrical power and commercial unit. कमर्शियल यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक एनर्जी है और एनर्जी अपन को पता है पावर इनटू टाइम होता है. पावर वी आर मेजरिंग इन किलोवाट एंड टाइम इज इन 1 आवर. तो ये जो एनर्जी होगी वो 1 यूनिट के इक्वल होगी. और 1 यूनिट के अंदर एनर्जी जूल में कितनी हो जाएगी? ये जूल ही है. किलोवाट आवर क्या है? एक तरह का जूल ही है. आप इसको वॉट और सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए. वॉट सेकेंड क्या होता है? 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. So let us try some examples जो आपकी NCERT में गिवन है. इसको ट्राई करते हैं एक बार. ऑन पेज नंबर 219 let us try this question. पॉज करके सॉल्व कीजिए एक बार. एवरीवन प्लीज. ओके, सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर. द करंट इज 0.5 एम्पेयर. व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. तो पावर अपन को पता है क्या होता है? V इंटू आई. ये देखो, ये अभी लिखा अपन ने, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई. ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, एक ही याद रखना है, उससे आप डिराइव कर सकते हो सारे बाय यूजिंग ओम्स लॉ. सो दीज आर द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर. सो पावर इज V इंटू आई. V इज डायरेक्टली गिवन टू यू हाउ मच? 220 and I is 0.5. So this is nothing but your 110. Now the power की यूनिट क्या होती है? वॉट. So the answer is 110 watt. Easy है, सिंपल सा. नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक.
try this question. Example, next example, it is one of the interesting example. ट्राई कीजिए पॉज करके. Okay, fine. Read the question once again. I have given an electric refrigerator having 400 watt which operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees this per kilowatt hour? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है विच इज़ हैविंग 400 वॉट उसकी पावर रेटिंग है और उसको मैं 8 आवर्स पर डे यूज़ करता हूँ. सो आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज का मुझे कॉस्ट निकालना है. इफ द कॉस्ट फॉर पर किलोवाट आवर इज गिवन मी एज 3, दैट इज द यूनिट. दिस इज व्हाट किलोवाट आवर इज व्हाट यूनिट. 1 यूनिट की प्राइस कितनी है? ₹3. सो आई हैव टू कैलकुलेटेड द कॉस्ट. So what I will do, I will first of all calculate how much energy I use in one single day. So energy consumption in one day. तो एक दिन में मेरे पास कितना एनर्जी है? 400, that is power into time, that is power into time. ही देखो क्या होता है एनर्जी, मैंने यहाँ लिखा है देखो power into time is what एनर्जी, और ये क्या है? ये यूनिट होता है. So 400 into 8, this is how much? 3200 watt hour. ये तो 1 डे का था. So इसी को अगर मैं for 30 days यूज़ करता हूँ कंटिन्यूसली, तो 30 डेज के लिए क्या करूँगा मैं? इसको into 30 कर देता हूँ. तो 32 into 3 is 96000 watt hour. Now I have given, we know that a cost for 1 kilowatt hour is ₹3. So the cost for, first of all convert it into kilowatt, so divided by 1000 it is 96 kilowatt hour. Okay, so एक की प्राइस है 1 किलोवाट आवर की प्राइस इज ₹3. so for 96 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा? ये 96 into 3 which is ₹288 is the amount, or you can say the cost of energy to operate it for 30 days. So this is the answer for your this example. वापस देखिए एक बार क्या किया मैंने. एनर्जी कंजप्शन एक दिन का निकाला, तो पावर इनटू एक दिन में मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ? 8 आवर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक दिन का हो गया. 30 डेज में मैंने इसको इंटू 30 कर दिया, फिर इसको कन्वर्ट किया किलोवाट आवर में, क्योंकि मुझे प्राइस किस में गिवन है? पर किलोवाट आवर. सो आई हैव कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर एंड देन 1 किलोवाट आवर की प्राइस 3 है, तो 96 इंटू 3 इज 288. ओके, सो नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज. ओके, ट्राई कीजिए पॉज करके खुद से. फाइन, सिंपल है ये दोनों. व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? क्या डिटरमाइन करता है? रेट एट विच एनर्जी. रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम. सो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर. पावर इज व्हाट? energy used per unit time, or the rate of energy dissipated. So this is the answer is what? Power determines the rate at which energy is delivered. So simple, ये तो one word answer था. Second question, an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. दोनों चीजें निकालनी है, power and energy. So power is what? V into I. So V is 220 into 5. So this is what? 1100 watt. And next is you have to energy consumed
for 2 hours, and so energy is what? Energy is power into time, and power is 1100 and time is 2, so it is 2200 watt hour, or you can say 2.2 kilowatt hour. Is that clear? So simple है ये, दोनों एग्जाम क्वेश्चंस हो गए on the same page. So here we have come to the end of this chapter, that is electricity. Now only the exercise questions are left on page number 221. So in the next, most probably 1 or 2 video we will take to cover up the exercise questions on the page number 221 of your NCERT. Till then, पढ़ते रहे and enjoy करें.